नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दी सेक्शन नंबर 291 CRPC. It has now become section number 326 of the BNSS. There is no change at all, only adjust the sections and start your learning. प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे, विच सेक्शन says so. तो डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस विदाउट बीइंग कॉल्ड एज ए विटनेस कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 291. इतना याद कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है एक बार को. देर आर टू सिचुएशंस, कोर्ट में एंड शैल. ये समझिए, द कोर्ट में सम्मन, ऐसे पढ़िए, द कोर्ट में सम्मन एंड एग्जामिन एनी सच डिपोनेंट एज द सब्जेक्ट एज टू द सब्जेक्ट ऑफ हिज डिपोजिशंस. सो इट इज नॉट एज इफ कि ही कैन नॉट बी कॉल्ड. मेडिकल एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है उसको बुलाया ही नहीं जा सकता है. इट मीन्स व्हाट? इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट. ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है. कोर्ट चाहे तो उसको सम्मन करके एग्जामिन भी कर सकती है. तो ये तो हुआ मे वाला खेल. यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, खासकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वाले टेक्निकल एग्जाम्स में. एंड शैल, प्लीज सी दिस, and shall on the application of the prosecution or the accused summon and examine. What? कि if the prosecution says, मैम प्लीज बुला लीजिए, वकील साहब क्यों टाइम वेस्ट करना. नहीं मैडम, वी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट लिख लीजिए, प्लीज दैट मेडिकल विटनेस बी कॉल्ड. और accused may move an application. If it happens, if prosecution prays or if the accused prays, then court is bound. Please see this. इसको आप ऐसे पढ़िए, the court shall summon and examine when on the application of the prosecution of the accused. So in one situation there is a discretion. यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि whether if the prosecution has moved an application, whether court is bound to summon the witness or not, or it is the discretion of the court. So on the application of prosecution or the accused, it is the duty of the court because of the use of the word shall. Then medical witness will have to be called. Now there is a section 291A. This section was added by 2005 Amendment Act and it came into force on 23rd June 2006. And the heading of this section is what? Identification report of magistrate. ठीक, इतना याद कर लीजिए. सेक्शन 291 was added by 2005 amendment and it deals with the identification report of magistrate. Which magistrate? Executive magistrate. Next question आएगा, report of, this is report of execution magistrate. What is the report of this? This is regarding identification. Identification of what? It may be the identification of person or it may be the identification of property. If this report is produced and this magistrate is not called as witness, this report can be taken on record in evidence without calling him. This is the gist of 291A identification report of the magistrate. So please don't forget that this in the case of section 291, this is the deposition as a expert witness. Expert witness, expert of his field. Suppose Arshan is the medical witness, Dr. Arshan. Now he has seen a murder in his presence. Then though he is a doctor,
बट ही इज ए विटनेस ऑफ ए फैक्ट। तो विटनेस ऑफ ए फैक्ट के बारे में सेक्शन 291 अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 291 अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ ए मेडिकल विटनेस एज द एक्सपर्ट ऑफ हिज फील्ड। डोंट फॉरगेट दिस कि मेडिकल विटनेस हो बाय प्रोफेशन, बट इफ ही इज द विटनेस टू द फैक्ट, then he will be treated as a normal witness, not as the expert, not as the medical witness. Section 299 is applicable only in case of expert medical witnesses. Don't forget this. स्टूडेंट्स के दिमाग में मिथ होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। तो मेहनत तो हर चीज़ में करनी है, लेकिन एक फोबिया काइंड ऑफ डेवलप नहीं करना है आपने इसमें। जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी को मूर्छा से जगाने के लिए पर्वत उठाकर लाए थे, और वो बहुत मुश्किल काम दिख रहा है आपको, था भी मुश्किल एक पर्वत को उठाना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहरे में जाएंगे, थोड़ा ढंग से समझेंगे, तो उनको लेकर के आनी थी केवल संजीवनी बूटी, जो कि बहुत हल्की होती, लेकिन वो पहाड़ क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि उनके पास अज्ञानता थी। इसीलिए गुड गाइडेंस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पास अज्ञानता नहीं है, तो आपका काम उतना ही आसान हो सकता है जितना कि जड़ी बूटी को उठा के लाना। अदरवाइज ये काम आपके लिए उतना मुश्किल हो सकता है जैसे कि पहाड़ को उठाना। तो काम आसान है, टास्क इज इजी, राइट, लेकिन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब की जानकारी अगर हमें होगी तो ये सिलेबस बहुत कम भी हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से हम क्वालिफाई भी कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ना है गलत है, बहुत स्मार्टली पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये ज़रूरी है। तो किसी भी डर को और भय को अपने मन में ना आने दें और जस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज़। गाइडेंस की जितनी बातें, जितना यूट्यूब के साथ पॉसिबल है, वो आपको कराया ही जा रहा है। आई बिलीव कि आप ये कर लेंगे आप ये भी। थैंक यू वेरी मच।